I welcome you to the seventh lecture of this casting process. I hope all of you are well and healthy. My name is Divyanshu Pandey. I've done my master's from IIT Kanpur. I am having 3 years of teaching experience and currently working under TechKey project as an assistant professor in Engineering College, Jhalawar. Okay. So before starting the lecture, I would like to recap the things which we have covered till now. So till now we have covered basics about casting, pattern design, and design of getting elements, and all kind of allowances. Okay. In last lecture, I have added 5 to 6 numericals based on design of getting elements, and in today's lecture, I am going to cover the solidification time concept and the riser design portion. So if you are considering the numerical part of this casting chapter, then you will see there are only two topics which covers numerical. First one is getting design. I'm considering the allowances portion in design only, and second portion which covers the solidification time and riser design. Okay, so these two topics covers all the numerical portion in your casting process, and you will see near about two questions every year from this two topic from these two topics. And other than these two topics, there are some important things related to theory concepts. So till now, I have also covered the theory portion, which the question from these area asked in theory part, and the theory major theory which remains is the types of casting, different types of casting. And after completing this riser portion, I'll start the different type of casting process. And then the last thing will be the defect in casting. So this whole lecture series, casting, covers the whole syllabus related to your GATE and other public sector exams, and you don't need to think any outside material, because I'm not leaving anything according to syllabus of some public sector and GATE examination. So without wasting time, let's start today's lecture. So today's lecture, we are going to discuss about the solidification and solidification time. So first of all, I've added this diagram to show you the importance of riser. So what happens initially? This is your liquid phase, molten metal in liquid phase, and when it starts solidifying, then this kind of solidification starts from the साइड साइड फेसेस, क्योंकि यहीं से हीट पहले बाहर जाता है, दैट्स व्हाई सॉलिडिफिकेशन यहीं से स्टार्ट होता है. Then what happens, shrinkage is also happening in between. So if you are not providing proper riser arrangement, then this void may occur. uh, this void may form inside your mold, and this will be called as defect, because you don't want any kind of void inside your material. Okay, ऐसा void जो है आपको material को fail कर देगा. That's why we try to avoid this kind of void, and to avoid this we use proper arrangement of riser, which we will see in later slides. ओके, तो पहले तो हमने ये देखा, एक ऐसे ही इंट्रोडक्शन में मैंने ये डायग्राम ऐड कर लिया था. अब एक चीज और पूछी जाती है कि जब आपकी सॉलिडिफिकेशन होता है तो व्हाट इज द फॉर्मेशन, हाउ द ग्रेन फॉर्म्स एंड व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स फॉर्म्स इनसाइड द कैविटी. तो टेक्सचर जो ग्रेन से, उससे भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए कि शेप ग्रेन्स का ऐसा ही क्यों होता है किसी पर्टिकुलर रीजन पे. So this thing I have covered here. So before finding out why this columnar grains and why this equiax grains forms in this cavity, first of all we need to know how this grain start forming. Okay, so first of all, what happened when you pour molten metal inside a cavity, सबसे पहले क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो न्यूक्लिएशन स्टार्ट होता है. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज न्यूक्लिएशन. So nucleation is nothing but what happens when molten metal start solidifying. तो उसके जो एटम्स होते हैं, छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे के पास आकर crystals formation start करते हैं. They start forming crystals. Okay, and the region where this formation of crystal starts, that is called nucleation region, and this process is called nucleation. Okay, और ये crystals भी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ये ग्रो होने लगते हैं. Okay, and these crystals then hindered by the adjacent crystal, जो उसके सराउंडिंग में जो और क्रिस्टल है उसके उसके उनके बीच में एक तरीके से एक दूसरे को अपोज करते हैं. ठीक है, और बाद में क्या होता है, जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, देन वो जो एक क्रिस्टल है जिसका ओरिएंटेशन कुछ अलग है, सेकंड क्रिस्टल विद हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, सो दे फॉर्म अ काइंड ऑफ बाउंड्री इन बिटवीन, एंड दैट बाउंड्री इज नोन एज ग्रेन बाउंड्री आफ्टर सॉलिडिफिकेशन. ओके, सो यही चीज मैंने बताया इन स्टार्टिंग.
न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएशन में क्या होता है, आपके एटम्स जो है वो करीब आने लगते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन, एटम करीब आने लगते हैं और दे फॉर्म्स क्रिस्टल्स, क्रिस्टल ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल ग्रोथ। सॉलिडिफिकेशन में जब टेम्परेचर आपका कम होते जाता है तो क्रिस्टल्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल ग्रोथ। एंड आफ्टर अगेन जब आपका टेम्परेचर और कम होता है, जब ये आपका जो भी मोल्टेन मेटल है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, तो रीजन फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, regions, these crystals are in some orientation, these crystals are in some orientation, so crystals boundaries form होने लगता है, और ये जो बाउंड्री है ये ग्रेन बाउंड्री होती है, और बाद में यही जो स्ट्रक्चर बनकर आ जाता है बाद में, इसको हम ग्रेन बोलते हैं, जिसमें जो भी यहाँ पर एटम्स है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, अलग अलग ग्रेन में अलग अलग तरीके से होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ओके। सो इस तरीके से ग्रेन फॉर्मेशन होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे कि व्हाई दिस कॉलमनर ग्रेन फॉर्म्स in between region and why this equi-X grain forms in the region of casting phase। तो casting में जो mold phase होता है, near the mold phase you will see equi-X grains and in the center you will see columnar grains। अब ऐसा क्यों होता है, let me explain। so region क्या होता है कि जो बीच वाला रीजन है, जो सेंटर वाला रीजन है, वहां पर क्या है, वहां पर है आपका टेम्परेचर का स्लो होने का रेट काफी कम है। So the temperature of this center region is high and the rate of cooling of this center region is low as compared to this face region। Why? यहाँ पे heat transfer बहुत easily हो रहा है sand में, okay, that's why cooling यहाँ पर तेजी से होगी, okay, cooling rate is higher at the face but it is slower in the center region। so center region में आपके जो crystals हैं उसको grow होने का time मिल जाएगा, they will grow। what I've told you कि न्यूक्लिएशन में क्या होता है, एटम्स पहले मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन, ओके, एटम्स मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन, ओके। जहां पर होता है उसको आप न्यूक्लिएशन पॉइंट बोलते हो, और यही क्रिस्टल जो ग्रोथ होते हैं उनको आप क्रिस्टल ग्रोथ फिनोमिना बोल देते हो। एंड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट क्रिस्टल्स is known as grain boundary and the region is known as grains। so in between this middle portion what is happening, this portion is getting excess amount of time। इसी की वजह से यहाँ पर जो है आपका जो क्रिस्टल है उसमें ग्रोथ ज्यादा होगा, और बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ ओनली द साइज ऑफ दिस ग्रेन विल बी बिगर एज कंपेयर टू दिस फेस रीजन ग्रेन्स। तो फेस रीजन के जो ग्रेन्स हैं उनसे उनसे बड़ा होगा इसका साइज, इसीलिए ये थोड़े लंबे बड़े बड़े दिखाई देते हैं, कॉलमनर ग्रेन्स ऐसे दिखाई देते हैं, और इनका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है क्योंकि यहाँ पर कूलिंग रेट ज्यादा है इसकी वजह से, ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द फेस रीजन, फेस रीजन में क्या हो रहा है, आपका हीट तेजी से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन तेजी से हो रहा है, तो द क्रिस्टल्स आर नॉट गेटिंग टाइम टू ग्रो, ओके, ग्रो होने का टाइम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई यहाँ पर छोटे छोटे इक्विएक्स ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं, ओके। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि what is the texture of grains in the middle region, you will say columnar grains or coarse grains, ये coarse है, बड़े बड़े grains है। and what will be the texture of grains in face region, then you will say it will be fine क्योंकि छोटे छोटे grains है, and equiex grains। I think ये आपको grain formation वाला concept याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। so इससे क्वेश्चन कभी कभी पुट अप हुआ है एग्जाम में, that's why I have discussed this thing also। बाकी न्यूक्लिएशन का मेजर जो फिनोमिना है वो आपको मटेरियल साइंस में बताया जाएगा, तो बस दिस पार्ट इज ओनली नीडेड फॉर योर कास्टिंग पार्ट, कास्टिंग के लिए केवल इतनी ही जरूरत है, ठीक है, इतना चीज आपको पता होगा, तो इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कवर कर लोगे, ओके। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मोल्टेन मेटल the grains in the casting near the mold wall, this question was asked in ESC, I forgot to add year here, किसी ईयर में पूछा गया है, मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ, बट ये गेट ESC में क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मोल्टेन मेटल द ग्रेन्स इन द कास्टिंग नियर द मोल्ड वॉल। देखिए मोल्ड वॉल के बारे में पूछा है, मतलब दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दिस एरिया, okay। so what I've discussed earlier that in this region heat transfer जो है वो तेजी से हो रहा है, cooling rate is high and because of that only the crystal will not get time to grow and that's why the size of grains will be smaller। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट it should be coarse and randomly oriented। coarse मतलब बड़ा, no, first option is incorrect। Second option is saying that
fine and randomly oriented. Yeah, second option is correct. ओके, फाइन है और आपका जो भी ग्रेन्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं आपके, अगर आप देखते हो वॉल का रीजन देखते हो तो, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसको इजीली ऐसे आंसर कर देते हो। आपको रीजन भी अब समझ में आ गया है कि ये फाइन और कोर्स क्यों बनते हैं ग्रेन्स। ओके, चलिए अब नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉलिडिफिकेशन टाइम एंड कोरिनो प्रिंसिपल। सो क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना होगा। सो if we are talking about solidification time and solidification, then volume and area play a major part. Why? We have studied in thermodynamics and heat transfer that if area is more, the heat transfer will be more. ठीक है, हमें ये चीज पता है कि अगर एरिया बड़ा होगा तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। ओके, That's why in casting what we want, in casting we want higher, in casting अब casting का जो shape होगा वो तो वैसा ही रहेगा, casting का shape आप change नहीं कर सकते हो because it will depend on the product, okay। But if you are going to use riser, then riser is used to provide excess molten metal inside the cavity, okay। It is used to compensate your liquid and solidification shrinkage। तो आप ये चाहोगे कि जो solidification part in riser should occur at the last, एकदम अंतिम में होना चाहिए solidification riser में। You will want that your riser should solidify at the end, okay, not before the solidification of your casting। अगर वो casting से पहले आपका अगर riser solidify हो गया, then it will not be able to provide molten metal to the casting, then there will be no use of riser। So that's why we need to use the concept of this volume and area। So we have seen that the area and volume is a major part in solidification। That's why Coronot principle consider volume and area as a major component for finding out the solidification time and all। So ये क्या कहते हैं, since solidification of casting occurs by losing heat from the surface, जैसा मैंने आपको बताया, and the amount of heat is given by the volume of the casting। volume क्या है, there is a volume of casting, okay, and this heat is going outside through the surface area। That's why he has given a relation between volume, area and the time, okay, and that relation is known as Coronot equation। और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जहाँ पे Ts जो है, Ts is your solidification time, K is mole constant, V is volume, A is surface area। Okay, surface area means आपका बाहर पूरे surface का एरिया लेना। We will see numerical on this formula। Okay, now you should know on which thing this K depends। ये जो K है ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो I have added this thing, constant of proportionality called mold constant, इसको K को mold constant कहते हैं। ये डिपेंड करता है आपके pouring टेम्परेचर पे, कास्टिंग और मोल्ड के थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है। Now I am going to show you what will happen if thermal conductivity and thermal diffusivity और specific heat के साथ क्या रिलेशन हो सकता है आपके पोरिंग टाइम का, सॉलिडिफिकेशन टाइम का। कभी कभी ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया, बट थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है, तो ये चीज भी हमें क्लियर करते रहनी चाहिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिडिफिकेशन टाइम। नाउ I need to tell what will happen if I am going to increase the thermal conductivity। Okay, तो थोड़ा आप कॉमन सेंस से सोचिए, अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे then what will happen? After increasing thermal conductivity, heat will flow in a faster way। ठीक है, काफी तेजी से बाहर जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ा, कंडक्टर हो गया, हीट तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा। तो आप कहोगे कि सर इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज कंडक्टिविटी then solidification time will decrease। It means there should be this kind of relation between solidification time, और ये जो K है इसको मैं स्मॉल से लिख देता हूँ यार, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कैपिटल K is used for your mold casting, so thermal conductivity is I am using by small k। Okay, so solidification time would be inversely proportional to the thermal conductivity। ओके, दिस थिंग इज क्लियर, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे भाई, हीट तेजी से ट्रांसफर होगा, दैट्स व्हाई सॉलिडिफिकेशन टाइम जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा आपका जो भी मटेरियल है। ओके, नाउ थर्मल डिफ्यूजिविटी।
सो व्हाट इज थर्मल, पहले तो आपको पता होना चाहिए थर्मल डिफ्यूजिविटी होता क्या है। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, ये एबिलिटी होता है मटेरियल का हीट को आगे भेजने का, ट्रांसफर करने का। ओके, दिस इज एबिलिटी टू पास हीट। सो ऑब्वियसली इसमें भी सेम ही चीज होगा, ठीक है। इसको अगर अल्फा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो यहां पर भी आपका इनवर्स रिलेशनशिप आएगा। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये इसके लिए है एंड दिस थिंग इज फॉर दिस thermal diffusivity. Now I'm going to write down the relation for specific heat. Now this is your Ts. यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर स्पेस है। So this is your Ts. Now think about it. अगर मैं स्पेसिफिक हीट बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। स्पेसिफिक होता क्या है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी भी यूनिट मास, इफ यू हैव कंपोनेंट ऑफ यूनिट मास एंड यू वांट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, देन द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज specific heat. So if specific heat is high, it means more heat should be extracted from the component. It means ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप कहोगे भाई स्पेसिफिक हीट अगर C है तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉलिडिफिकेशन टाइम। सो दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स। अब ये देखिए, ये अगर कॉमन सेंस आप लगाएंगे ना हल्का सा भी HMT और थर्मो का, तो आप अपने आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। बट आपको ऐसा सोचना चाहिए, बिकॉज इन गेट व्हाट हैपेंस समटाइम क्वेश्चन, सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स, आई हैव सीन दैट। क्योंकि गेट को बोलते क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट में ये समझते हैं कि आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो कहीं का अगर आपका कास्टिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें भी थर्मल का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो थर्मल का कॉन्सेप्ट यूज करके आप ये चीज यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। दिस इज एप्टीट्यूड, बेसिक एप्टीट्यूड। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 17 इस टॉपिक का। आई विल फोकस ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन बिकॉज न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है गेट में, तो इसको हमें अच्छे से कवर करना है। और इसका मतलब ये नहीं थ्योरी को छोड़ देना है, उसको भी कवर करना है। अच्छे रैंक के लिए हमको सब कुछ अच्छा करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस क्वेश्चन। विद द सॉलिडिफिकेशन फैक्टर ऑफ, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर मींस द वैल्यू ऑफ, पहले जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट आर द थिंग्स विच द क्वेश्चन हैव गिवन। कौन कौन सा चीज है जो क्वेश्चन दे रखा है। So the question has given the value of K, which is 0.97 into 10 to the power 6 per meter square. Okay, so this is the value of, ये यूनिट आप देख सकते हो, फॉर्मूले से आराम से आपको पता चल जाएगा, इतना ही होगा। So this is the value of K. Now the solidification time in second, with the solidification time in second process. Okay, we need to find out the solidification time. Ts is not known, and the diameter of his sphere is given. D is equal to 200 mm. Okay, no need to worry. First of all, you should write the formula. भाई आपने ये quantity लिख दिया कि ये चीजें आपको दी हुई हैं. You need to find out the solidification time, and we know that solidification time is nothing but equal to K times V upon A, और यहाँ पर square. So I'm going to use this formula. Okay, so Ts should be equal to 0.97 into 10 की power 6. You also need to solve this numerical. Okay, I'm not practicing it by myself. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप तुरंत अभी वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं आप अटकते हैं, देन यू शुड रेफर टू दिस सॉल्यूशन व्हिच आई एम सॉल्विंग हियर। ओके, इसी तरीके से इंप्रूवमेंट पॉसिबल होगा। आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब हम पेन यूज करते हैं ना, व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व any numericals by using paper, pen and paper, then we came to know that ये भी गलती हो सकती थी। यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखना है, मीटर में लिखना है, क्या लिखना है। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो छोटी छोटी चीजें पता चलती, कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं, वही गलतियां आपको दूर करनी है। ओके, सो यू नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, and if you are facing any kind of difficulty, then you can refer to this solution which I am providing here. Okay, so Ts equal to 0.97 into 10 to the power 6, and what will be the volume, 4 by 3 pi, and simply पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, after that we will d by 2 का whole cube upon, and what is the area, 4 pi d by 2 whole square. So this thing will be cancelled out, and you will get here Ts equal to 0.97 into 10 to the power 6
इनसाइड ब्रैकेट में क्या होगा, ये पावर से एक पावर गया, d/2 बचा, यहाँ पे d/6 बचेगा। ओके, सो आई थिंक कोई मिस्टेक यहाँ तक नहीं हुई है। अब यहाँ पर आपको d की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ओके, 0.97 इंटू 10⁶, और इसको आप अगर मीटर में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, इसको मत भूलना यार, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, देन वी विल गेट टीएस एज 1077.7 सेकेंड। तो आप अगर क्वेश्चन अभी सॉल्व किया तो ये थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लो, दिस शुड बी योर आंसर। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी अभी गेट का क्वेश्चन है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। दे जनरली चेंज द वैल्यूज एंड द शेप ऑफ कास्टिंग, और बट कॉन्सेप्ट यही रहता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। So volume of a cube of side L and volume of a sphere of radius r are equal. चलो ठीक है। Both the cube and sphere are solid and of same material. Okay. They are being cast. The ratio of solidification time of cube to the same of sphere. ठीक है। तो t cube upon t sphere ये हमसे पूछा गया है। ओके, ये हमसे पूछा गया है। Now what we know that T, let's say solidification time is simply T, then we know that T is equal to K times V upon A की पावर 2। ठीक है, ये चीज हमें पता है कि ये होता है, दिस थिंग वी नो। नाउ जस्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर क्यूब एंड स्फीयर एंड देन टेक रेशियो। यही करना है आपको, सिंपल टीसी अपॉन टीएच निकालने के लिए। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर टी क्यूब। सो टी क्यूब शुड बी इक्वल टू के। अब सेम मटेरियल है तो के की वैल्यू तो सेम हो गई दोनों के लिए, कोई बात नहीं। वी, वॉल्यूम को वी रख देते हैं, एंड व्हाट विल बी द, बिकॉज वॉल्यूम इज सेम फॉर स्फीयर एंड व्हाट यू से क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम को वी रखिए सीधे यहाँ पे, फालतू में कॉम्प्लिकेट नहीं करते क्योंकि सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ व्हाट शुड बी द एरिया हियर, क्यूब जो है उसका साइड एल है तो ये होगा 6L²। 6 साइड होते हैं ना, दैट्स व्हाई। नाउ यहीं पे लिख देता हूं मैं टी स्फीयर। ये कितना हो जाएगा, k टाइम्स, अगेन वॉल्यूम उतना ही v है तो v को v रखने दो, सिंपल करने की जरूरत, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ रेडियस इज गिवन, सो एरिया वुड बी इक्वल टू 4πr²। ओके, नाउ वी नीड टू टेक द रेशियो ऑफ t क्यूब अपॉन t स्क्वायर। सो t क्यूब अपॉन t, देखिए अगर मैं कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। आफ्टर सॉल्विंग ओनली यू कैन सी द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आप देखते रहोगे तो आपको लगेगा अरे सर आसान है, हो जाएगा। जब आप अटेंड करोगे तो आपको गलती पता चलेगी। सो अभी आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फिर मेल मिलाप करते हैं किसका सही किसका गलत है। गलती होती है आप उसको इंप्रूव करेंगे। ओके, सो टी क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, k से k कैंसिल हो जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग k हियर। सो इन केस ऑफ क्यूब व्हाट विल बी हियर, v अपॉन 6L²। देखिए यहाँ पे मैं पावर भूला हूँ, ये भूलने वाली गलती पहले दूर करनी है, इससे बहुत गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा v अपॉन 4πr² की पावर। नाउ v विल बी कैंसिल्ड आउट, आपका v जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, थोड़ा सा फिर से हम देखते हैं क्या बचा। तो ऊपर आएगा 4π, ओके, 4πr² अपॉन 6L² का होल स्क्वायर। आई थिंक यही आ रहा होगा आंसर, अगर कुछ गलती वगैरह मैंने नहीं किया हो तो। ओके, सो यही आंसर आएगा। और बाद में आपका जो, आप अगर पेपर देखोगे पुराना प्रीवियस ईयर का तो उसमें ऐसा ही कुछ रिलेशन दिया था, 6 का होल स्क्वायर और आपका r अपॉन l की पावर 4। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब देखिए इसको अगर अभी क्या आप कहोगे कि इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगर आप देखोगे ऑप्शन, अगर ऑप्शन में इस तरीके का आंसर गिवन है तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसे पुट कर दोगे। मान लो ऑप्शन में आर और एल की वैल्यू नहीं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आप जो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज सेम, देन यू कैन इक्वेट बोथ वॉल्यूम, और इक्वेट करके आर और एल रिलेशन निकाल लोगे और वो सिंपल यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपको एक कांस्टेंट फॉर्म में पूरा आंसर आ जाएगा। बट हमारे अभी जो ये मैं क्वेश्चन लिया था उसमें सिंपल आर एल ऐसे ही इसी फॉर्म में था, दैट्स व्हाई आई सॉल्व दिस क्वेश्चन टिल नाउ। अभी मुझे बताना क्या है, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है, मैं ऑप्शन भी ध्यान देना होता है, तो ऑप्शन में मैंने यहाँ पे ऑप्शन ऐड नहीं कर रहा है, बट ऑप्शन में ऐसे ही थे, ठीक है, इसीलिए मैं यहीं पर आके क्वेश्चन छोड़ दिया। बट इफ ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कांस्टेंट वैल्यूज मिल रही है, फिर आर और एल का रिलेशन आपको निकालना होगा। ओके, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए ये इस साल का क्वेश्चन है, इस साल के सेट दूसरे सेट में, जो आफ्टरनून वाला सेट था उसमें ये क्वेश्चन था। आई एम सेइंग एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस सॉलिडिफिकेशन टाइम और योर फिलिंग टाइम और राइजर डिजाइन, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, अ कास्ट प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल हैज अ डायमेंशन ऑफ दिस 75 125 20, द सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द कास्ट प्रोडक्ट। अब आप भी इसको सॉल्व करिए पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ सोल्यूशन देखिएगा। 2 मिनट है सॉलिडिफिकेशन टाइम एज कैलकुलेटेड यूजिंग Orino's rules having index n की वैल्यू 2 है, ठीक है। If under the identical casting conditions, the cast product shape is changed to a cylinder having diameter 50 and height 50, दोनों 50 है, height और diameter दोनों 50 है, the solidification time will be, ओके। तो यहाँ पर बोले क्या क्वेश्चन में क्या है कि देयर इज अ कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट का वॉल्यूम गिवन है, सॉलिडिफिकेशन टाइम गिवन है। अब क्या कह रहे हैं कि उस कंपोनेंट को हमने क्या कर रखा है, जो मटेरियल है उसी सेम मटेरियल को हमने चेंज कर रखा है एक सिलेंडर में जिसकी हाइट और डाया हमें दे रखा है, पूछा कि उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वाले के लिए एक रिलेशन लिख देते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। तो so we know T solidification equal to K V upon A to the power 2, ये होता है। so पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये लिखते हैं। so I should use स्पेस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी और कम स्पेस है, तो हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। so T S इक्वल टू, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपर आएगा वॉल्यूम, so वॉल्यूम क्या होगा 75 इंटू 125 इंटू 20। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सरफेस एरिया, 6 फेसेस होते हैं, सो 2 इंटू 75 इंटू 125, 2 फेसेस तो इसके हो गए, प्लस 2 फेसेस होंगे आपके ये साइड वाले 275 इंटू 20, प्लस 2 फेसेस और होंगे 20 और 75 वाले। ओके, सो दिस इज ओके। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द, अब इसका वैल्यू तो मुझे पता है, टीएस, ये किसके बराबर है, 2 मिनट के बराबर है। ओके, नाउ सेकंड थिंग जो मुझे कैलकुलेट करना है, टी एस सिलेंडर बोल दो इसको, ये मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेम मटेरियल है तो के की वैल्यू के रहने दो, यहाँ पे पावर 2 लिखना मैं बार बार भूल रहा हूँ, ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है, के। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम आएगा, ओके, एंड यू कैन सी दैट द डाया एंड द हाइट इज सेम, सो वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ एनी, अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं किसी भी इसके, क्या बोलते हैं, सिलेंडर के, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ओके। सो यू कैन राइट पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, एच यहाँ पे डी होगा तो डी लिख दो, ये तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 2 पाई आर एच इज द सरफेस एरिया, ओके। सो सिंपल सा यहाँ पे लिख दीजिए डी बाई 2 इंटू, ठीक है, ये चीज क्लियर होगा। अब आप कहोगे कि अगर सिलेंडर है तो ये तो जो 2 पाई आर एच हो गया ये साइड का सरफेस हो गया,
टॉप और बॉटम का भी तो सरफेस होना चाहिए, वो भी तो सरफेस एरिया में काउंट होगा। यस, दैट शुड आल्सो बी काउंटेड। या इतना ही लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सो 2 टाइम्स पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो मुझे लगता है यहां तक का जो भी चीज है ये तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ऊपर जो होगा आपका पाई डी क्यू अपॉन 2, पावर 2 तो रहेगा ही रहेगा के आउटसाइड, ठीक है। आई थिंक ये चीज सही है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, सो वैल्यू आएगी कितनी, के टाइम्स ये पाई पाई कैंसिल कर लो, पावर कट जाएगा तो ऊपर एक डी बचेगा। ठीक है, और नीचे जब इसको सम करोगे तो ये 3/2 होगा, डी बाई 2 इंटू 2/3, ये ऐसा हो जाएगा कुछ। ये 4 होगा, सॉरी, क्योंकि स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 4 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। d/4 ऊपर आएगा और फिर ये नीचे से 2, तो ये 2 तो फाइनली आएगी वैल्यू आपकी k d/6। ओके, तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आप सिलेंडर के केस में जब देखोगे तो फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो k टाइम्स d/6 आ रही है। आगे स्पेस है, आगे स्पेस, चलो यहीं पे सॉल्व करते हैं। सो ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये आई है टी सिलेंडर की। ओके, और टी स्क्वायर का ऊपर गिवन है न्यूमेरिक वैल्यू। अब क्या करना है हमको, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको मैं थोड़ा सा दूसरा कलर देके एक बार क्लियर कर देता हूँ। स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ गई है। ये जो है पहला, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये क्वेश्चन में गिवन था। दूसरे में मैंने क्या किया, रिलेशन जो दिया है उसकी वजह से टी सिलेंडर का मैंने निकाला, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देना है सिंपली। तो उससे क्या मिलेगा हमें टीएस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इतना चीज आप कर सकते हैं ना, इन दोनों को बस डिवाइड करिएगा न्यूमेरिकल। अब तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू केवल बची है, इसका न्यूमेरिक वैल्यू निकालिएगा कैलसी से, and now you need to divide it, and you know the value of d. The value of d is 50 mm. Okay, and by putting all these values, you will get the value of, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ऊपर सारी चीजें हमने mm में पुट करी है, so you also need to put the value of d in mm here. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे आप मीटर में पुट कर दो। ओके, क्योंकि ऊपर मैंने सारा कुछ mm में पुट करा है तो आपको नीचे भी mm में पुट करना होगा। Okay, in this part also you need to put all values in mm, because in this equation number 1 I've added everything in mm. ठीक है, तो इसलिए इसको भी mm में रखना है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। And after solving you will get TS cylinder equal to 2.82 minutes. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो इसको और तेजी से आप कर लोगे। ओके, तो 3 मिनट होते हैं हमारे पास हर क्वेश्चन करने के लिए गेट में। ओके, हमारे पास 3 मिनट होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो इसीलिए आराम से इत्मीनान से, गलती नहीं होनी चाहिए। द वे आई हैव टेकन टाइम हियर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम लिया ताकि मुझे पता चले कि भाई मैं जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन सही तो है। ओके, तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा टाइम लो बट क्वेश्चन गलत नहीं करो। ठीक है, जिससे गलती होने की गुंजाइश कम से कम हो जाए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये 2021 का ही न्यूमेरिकल था।
ओके, तो अभी तक आप इसमें कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है। आप इसको खुद से सॉल्व करना, उसके बाद आंसर यहाँ से मैच कर लेना, और इसी कैसे सॉल्व होगा मैंने आपको बता दिया। ओके, अब अभी तक हमने देख लिया सॉल्डिफिकेशन टाइम, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, एंड वी हैव सीन अबाउट द ग्रेन स्ट्रक्चर इन सॉलिडिफाइड रीजन, ये भी हमने देख लिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइजर पार्ट। ओके, राइजर क्यों यूज होते हैं, फिर से हम यहाँ पे वही चीज जो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, आप रिटर्न हियर। राइजर इज यूज्ड टू कंपेंसेट लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, ठीक है, एंड राइजर मस्ट सॉलिडिफाई आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। बिल्कुल क्लियर है भाई, अगर पहले ही सॉलिडिफाई हो गया, देन हाउ राइजर विल प्रोवाइड मोल्टन मेटल टू द कैविटी। दैट्स व्हाई राइजर को पहले सॉलिडिफाई नहीं होना है, ऐसा आपको बनाना है। सो जनरली वी यूज टू काइंड ऑफ राइजर, one is side riser, second is top riser. By observing only the structure of riser, you can say that it is side riser or it is top riser, by observe करके ही आप बता सकते हो। तो इन दोनों की एनालिसिस करते हैं हम एक एक करके। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, आपको दिख रहा है कि राइजर, ये जो राइजर है ये साइड में है, तो आप कहोगे कि दिस इज साइड राइजर। Okay, now what we need to find out here, what should be the optimum shape of this riser, what should be the length, what should be the dia। हम यहाँ पर सिलेंडर ही क्यों लिए हैं, why don't we use spherical riser, ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो थोड़ा सा पहले यही समझ लेते हैं, why don't we use sphere kind of riser। So if I am taking an example for top riser, so your riser should be like this। Okay, so your riser should be like this। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, this is riser। Okay, so this first case is in which I've taken riser as cylinder, मतलब riser का जो shape है मैंने cylinder लिया है। Now in second case I am going to consider the shape as sphere। Okay, so earlier in the beginning of this lecture I've told you that two geometrical parameter which plays important role in this solidification is area and volume। So we all know that the surface area increases heat transfer। So what happens in case of riser, in riser we want to reduce the surface area so that जो heat transfer है वो कम से कम हो। To reduce the heat rate, we want to reduce the surface area as well in case of riser, because we don't want to make molten metal solidified in riser। हम नहीं चाहते हैं कि riser के अंदर जो molten metal है वो solidify हो जाए। Okay, that's why we want to reduce the surface area so that we can also reduce the heat transfer। So you will see, sir, in spherical part, the surface area will be less as compared to cylindrical. So why don't we use this spherical kind of riser? The problem is in spherical part, the molten metal will be at the center। जो molten metal है वो आपके center पे होगा, जो surface वाला है वो solidify होने लगेगा because of heat transfer, surface पे जल्दी होता है। Okay, and molten metal will be at the center, and because of that the flow should not be in a proper way to fill the cavity। क्योंकि molten metal तो बीच में, अभी ये पोर्शन सॉलिडिफाई हो गया, ये यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ओके, ये जो ये वाला जो पोर्शन है, लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। सो दिस पोर्शन जो कि आपके मोल्ड सरफेस के पास है, ये इसका टेम्परेचर जो है वो तेजी से कम होगा, तो इनकी फ्लोएबिलिटी भी कम हो जाएगी। जैसे हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में, जब इनकी फ्लोएबिलिटी कम हो जाएगी तो ये उतनी तेजी से अंदर फ्लो नहीं करेंगे, और ये जो मोल्टन मेटल है इनको ये this part will hold this molten metal, and molten metal will not be able to come inside the cavity because it is in the center। So because of this reason only we prefer cylindrical riser। इसमें एक तरीके से थोड़ा सा जो शेप ऐसा है कि आपका मोल्टन मेटल जो है वो सीधे वर्टिकली नीचे या फिर हॉरिजॉन्टली आ भी तो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा सेंटर में सॉलिडिफिकेशन थोड़ी हो रहा है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम ओनली वी यूज सिलेंड्रिकल राइजर। हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ये स्फेरिकल राइजर के केस में।
तो आई एम नॉट रिटन एनीथिंग हियर, हमने यहाँ पर आपको बोलकर वर्बली बता दिया। आपको ये चीजें जो है कुछ दिमाग में होनी चाहिए, सब कुछ नहीं लिख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। व्हाई डोंट वी यूज स्फेरिकल राइजर? बिकॉज वी नो दैट द मोल्टेन मेटल विल बी एट द सेंटर ऑफ द राइजर। ओके, जो कि एक तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं है इन केस ऑफ कास्टिंग डिजाइन, तो इसलिए हम आपका जो भी है सिलेंड्रिकल राइजर यूज करते हैं। नाउ साइड राइजर, एक एक करके पहले साइड राइजर देखते हैं, फिर हम टॉप राइजर के बारे में बात करेंगे। ओके, सो व्हाट वी वांट टू यूज राइजर सो दैट आपका जो मोल्टेन मेटल है राइजर में वो आपके कास्टिंग के बाद में सॉलिडिफाई। तो हमें ऑप्टिमम चाहिए सब कुछ, वी वांट ऑप्टिमम डाया, वी वांट ऑप्टिमम एवरीथिंग ऑप्टिमम। So first of all, we need to write what will be the area of this riser. So surface area will be equal to 2 times होल स्क्वायर, ये दोनों ऊपर का और नीचे का दोनों लोगे आप सरफेस एरिया। सरफेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है यहाँ पे साइड राइजर का, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों का एरिया काउंट करना होता है। सो दैट्स व्हाई इन साइड राइजर एंड टॉप राइजर इज मोर प्रेफरेबल बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया। क्योंकि टॉप राइजर में आपका एक जो है नीचे वाला सरफेस यहाँ पे कैविटी में अंदर चला जाता है, तो वहां पे सरफेस एरिया कम हो जाता है। आगे वाले अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे। ओके, प्लस 2 पाई r into h. This will be your surface area. What will be the volume? Volume will be equal to pi r square h. अब यहां से एक काम करते हैं, लेट मी यूज h एज अ फंक्शन ऑफ, h जो है वो हम v के फॉर्म में लिख देते हैं। तो h इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन पाई d बाई 2 का होल स्क्वायर। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ h इन दिस फॉर्मूला। तो आप सिंपल सरफेस एरिया को मैं सिंपल कैपिटल ए से लिख रहा हूं, तो 2 टाइम्स पाई d बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई d बाई 2, और ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम, और नीचे पाई और d बाई 2 का होल स्क्वायर। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, और एक पावर भी यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो आप लिखोगे यहाँ पे तो फॉर्मूला बनकर आएगा 2 पाई होल स्क्वायर प्लस 2v अपॉन डी बाई 2। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप लिख सकते हो 2 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4v अपॉन डी। Okay, now we want to find the optimal relationship. So let's differentiate area with respect to dia. Okay, then what we will get? ये आपका बाहर आएगा 2 पाई इंटू 2, ये पहले ही 4 बाहर कर दो, नीचे वाला मैं 4 पहले बाहर लिख दिया हूँ। I've written this 4 outside, and this will be your 2d, and plus now this will be negative because of differentiation. So negative 4v upon t square. Okay, and this should be equal to 0. ये 2 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। So you will get what? Pi d equal to 4v upon d square. इसको इधर लिखते हैं, तो आपको v की वैल्यू जो मिलकर आ रही है वो आ रही है पाई d क्यूब अपॉन 4। ये आपको v की वैल्यू यहां से पता चली, बट ओरिजिनली वॉल्यूम क्या है? ओरिजिनली वॉल्यूम जो है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। So originally your volume is v is equal to pi d by 2 का whole square h, and by derivation you came to know about this thing pi d cube upon 4। अब थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या हुआ है। तो क्या होगा, ये बचेगा पाई डी स्क्वायर एच इक्वल टू पाई डी क्यूब, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। सो वन रिलेशन वी गेट फ्रॉम हियर इज, यहां लिख रहा हूं मैं, एंड द रिलेशन इज d इक्वल टू, यहां पे देखिए पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
ओके, ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, एक डी बचेगा, डी इज इक्वल टू एच. सो इन केस ऑफ साइड राइजर फॉर ऑप्टिमल कंडीशन वी शुड हैव डाया इक्वल टू हाइट. अब एक चीज और करते हैं, लेट मी फाइंड आउट व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, लेट मी राइट सरफेस एरिया और सरफेस एरिया लिखते हैं. अब यहाँ पर देखिए डी और एच बराबर है, तो फॉर्मूला सिंपल पहले हम लिखते हैं. सो आपका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा यही ऊपर वाला जो वॉल्यूम आपने लिखा था. ओके, एंड वॉल्यूम यू हैव सीन पाई डी क्यूब अपॉन 4. तो लेट मी राइट डायरेक्टली पाई डी क्यूब अपॉन 4. थोड़ा सा वॉइस को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फ्रॉम माई अपार्टमेंट और बाहर आपको हल्ला सुनाई दे ही रहा है. सो थोड़ा सा बियर करिए मेरे साथ. ओके, सॉरी फॉर दिस नॉइज. ओके, सो ये आपका वॉल्यूम है और नीचे सरफेस एरिया जो है ये वाला चीज मैं इसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ. तो मुझे देखना है कि ये आएगा क्या रेशियो. ओके, आई थिंक आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा. लेट मी ऐड वन स्लाइड हियर. ठीक है, तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं. क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है. ओके, सो हम यहां तक थे. सो हमें डी और एच पता चल गया है. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो. सो वॉल्यूम हमने क्या निकाला था, पाई डी क्यूब अपॉन 4. यही तो था यहां से नीचे वाला ये वाला चीज अगर आप देखो तो. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया हमें क्या पता था, दो तो पहले नीचे वाले पोर्शन, ऊपर और नीचे वाले पोर्शन, दैट कैन बी रिटन एज 2 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई डी बाई 2. अब देखिए h जो है वो आपके d के बराबर है, अभी आपने निकाला है, तो h को मैंने यहाँ पे d लिख दिया है. अब पाई से पाई पहले पूरा आप खत्म कर दीजिए यहाँ पे. ठीक है, थोड़ा हमको देखना है कि भाई आ कितना रहा है रिलेशन यहाँ पे. तो ऊपर आपका बचेगा, डी स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर देते हैं, ऊपर बचेगा d अपॉन 4. अब नीचे देखिए क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है आपका यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2. ठीक है, अब यहाँ पे ये भी 2 से गया, तो फाइनली आपका ये आ गया d अपॉन 4 और नीचे आपका आएगा 1/2 प्लस 1, तो आप लिख सकते हो 3/2. सो ये आपका बन के आ जाएगा d/6. ओके, सो आपको एक और कंडीशन मिलती है कि इन केस ऑफ साइड राइजर फॉर ऑप्टिमल कंडीशन यू विल गेट वॉल्यूम टू एरिया रेशियो एज d/6. तो ये दो चीज आपको याद रखनी है. एक तो वॉल्यूम टू एरिया रेशियो कितना होगा, d/6 के बराबर होगा, और जो हाइट है वो डाया के बराबर होगा. अगर साइड राइजर यूज कर रहे हैं तो ये कंडीशन हमें यूज करनी है. ठीक है, किस लिए भाई, ताकि हमारा जो राइजर है, राइजर का जो सॉलिडिफिकेशन है वो डिले से हो. ठीक है, तो एक बार और देखते हैं. तो ये हमारा ऑप्टिमल एक तरीके से राइजर का डिजाइन है. ठीक है, आगे अभी डिजाइन के कुछ और पार्ट हमें आगे देखने हैं. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर ऑप्टिमल ज्योमेट्रिक कंडीशन देख ली है आपके राइजर का. कुछ और कंडीशन है जो हम अभी आगे देखेंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, सरफेस एरिया लिखा पहले, वॉल्यूम लिखा, उसके बाद जो आपका एरिया है, क्योंकि एरिया को ऐसा क्यों किया है भाई, हमने एरिया को कम करना है ना, हमें एरिया को, सरफेस एरिया को हमसे कम से कम करना है. इसीलिए सरफेस एरिया को हमने डाया के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है. किसको, इसको हमको मिनिमाइज करना है. we want to minimize surface area, that's why we have differentiated this surface area with respect to dia. Okay, ठीक है, क्यों कर रहे हैं मिनिमाइज, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द हीट ट्रांसफर रेट. ओके, तो आई थिंक यहां से आपको समझ में आ गया होगा. इनमें से आपको ये चीजें याद रखनी है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का रिलेशन, और h और d के बीच में रिलेशन क्या होगा ये याद रखना है. अभी तो मैंने साइड राइजर के बारे में बात करा है, इसके बाद सेम चीज हमें करना है टॉप राइजर के बारे में. ठीक है, देखिए टॉप राइजर का डेरिवेशन हम आप करोगे, यहां पे जो v अपॉन सरफेस एरिया आता है, ये उतना ही आता है. ठीक है, और जो h और d का रिलेशन आता है वो होता है
h इक्वल टू d/2। तो ये चीज आपको खुद से डिराइव करनी है अब, ठीक है, कुछ आप भी करिए। तो मैं आपको रिलेशन बता दिया कैसे आएगा, मैंने अभी पहले आपको सॉल्व किया था। मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख भी देता हूँ। यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, पाई d/2 होल स्क्वायर h। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन वही रहेगा, एरिया का एक्सप्रेशन यहाँ चेंज होगा बिकॉज यू विल कंसीडर ओनली दिस टॉप फेस, नॉट द बॉटम फेस। बॉटम फेस यहाँ पे कैविटी के अंदर आ रहा है तो इसको आप नहीं काउंट करोगे। सो सरफेस एरिया विल बी लाइक दिस। पहले हम वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, दिस सिलेंडर योर जो डिस्क वाला एरिया था उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते थे बिकॉज नीचे वाला भी लेते थे हम साइड में। बट इन केस ऑफ टॉप राइजर यू नीड टू कंसीडर ओनली टॉप फेस, सो ओनली वन एरिया पाई r स्क्वायर प्लस जो आपका कर्व फेस है, सो दैट विल बी 2 पाई r h, 2 पाई d/2 into h। so surface area लिख दिया। now what you need to do, you need to replace this h from here in terms of v, and now again you need to differentiate this area with respect to dia. You will get this relationship, h is equal to d/2, and after calculating the ratio between this volume and surface area, you will get the same relation, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया इक्वल टू d/6। ठीक है, तो ये चीज आपको खुद से थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है। इससे अब आप कहोगे ये सर डेरिवेशन क्यों कर रहे हो। आप जब डेरिवेशन करते हो, व्हेन यू डिराइव समथिंग, कोई फॉर्मूला थोड़ा सा डिराइव करते हो तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, इफ यू आर मगिंग अप ऑल दीज थिंग्स यू विल फॉरगेट एट सम टाइम, कभी ना कभी इसको भूल जाओगे। बट ये अगर कॉन्सेप्ट याद है, हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, अगर इन चांस आपको कहीं फॉर्मूला भूल जाता है, यू कैन इजीली डिराइव इट। ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, देयर इज सिंपल मैथमेटिक्स, ये वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, क्लास 10 मैथमेटिक्स यू कैन डू इट इजीली, नॉट क्लास 11, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ रहा है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर हमें रुकना चाहिए क्योंकि आगे और भी बहुत सी चीजें और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करना है। तो अभी हम पूरा राइजर वाला पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। देयर आर some more criteria, some more methods which we use for obtaining the right size and shape of riser। कुछ अलग और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने और अलग अलग टेक्निक दिया है जो हमें कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उनसे जो भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में पूछे गए, आई विल ऐड दोज न्यूमेरिकल्स आल्सो इन द स्लाइड्स। ओके, and like this only you need to solve that numericals by yourself first, and then if you get any kind of error in your solution, then you can check my solution जो कि मैं यहाँ पे solve करता हूँ। ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और and if you are liking these videos, then you can share all these videos with your friends also। Okay, so okay, thank you for today's presence।